Hello students, in this lecture we will do question of exercise 4.2, question number 14, 15, 16 and some examples. Those students who have not seen my lectures 1 to 6 of topic determinant, please see it and then continue with this lecture. Question number 13th, show that the determinant value is equal to 1 plus a square plus b square whole cube. How we can prove it? Up to question number 1 to 12th I said there are so many alternative method to do the questions, but here there are two possibility, one by column operation and another by row operation. And here not we are able to change into a simplest form. After changing the two element into 0 we will expand. So first by column operation we are applying C1 gives C1 minus BC3 and C2 gives C2 plus AC3. Why we are applying these two operations? So we will get it what term we want in RHS, 1 plus a square b plus b square. We can take common as well as two element, we will get it 0. All of you observe in C1 we are getting one element 0 and other two we are getting as 1 plus a square plus b square. As from the last element of C1 you will take b common. So what is left inside? 1 plus a square plus b square. In the same way when we apply C2 gives C2 plus AC3, we are getting one element 0 and from other two element what term we can take common? 1 plus a square plus b square. Now we will take common, taking 1 plus a square plus b square as common from C1 and C2 we get 2 time we are getting from first column and second column. So 2 time in multiplication, that is whole square. What is left inside the determinant? 1 0 b 0 1 minus a minus 2b 2a 1 minus a square minus b square. Now we will expand further. If we will do the simplification, it will not come in simplest form. अगर इसके बाद हम simplify भी करते हैं तो हम लोग टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये और simplest form में चेंज नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसका expansion कर रहे हैं. You can expand by first row or first column. So we are expanding through first column and we are getting this value. Simplify it. So we are getting after simplification 1 plus a square plus b square. We will multiply it, that is equal to RHS. Our question is complete. This question is important. Already it came 2 times in 2010, 2009 and one more time it came between 2010 to 2015. You can check it in board exam questions. So with that point of view this is important, and here only two ways to apply the property, one with the help of column and one with the help of row, and we can make two elements 0. Next question number 14. Question 14 is also important. Its concept is also different. In RHS we want 1 plus a square plus b square plus c square. If you will observe, few terms are only given in a complete square form, a square b square c square, what we want in RHS. Other they have given as a product of these two constant a b c, a b a c. How we will get it? अगर हम किसी भी रो और कॉलम को भी ऐड कर रहे हैं, we are not getting this term 1a plus a square plus b square plus c square. यहाँ हम इसे एक अलग कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं, जहाँ पे हम लोग किसी कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करेंगे. अगर ABC से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज अनचेंज. अगर सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं सो डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी दैट नंबर ऑफ टाइम्स. तो यहाँ पर अभी हम जो क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन 14 और एक और एग्जाम्पल, वहाँ पे हम कुछ कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं, एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल ऑब्जर्व देयर इज नो चेंज इन द डिटर्मिनेंट वैल्यू. तो हमने ABC का मल्टीप्लाई और डिवाइड करा. जो डिवाइड वाली टर्म है एज इट इज़ हम लोगों ने बाहर रखी है, और जो मल्टीप्लाई वाली टर्म है ABC, हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द कंसेप्ट. मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई जब भी स्केलर का मल्टीप्लाई करते तो हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना रहता है, पर जब हम लोग मैट्रिक डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं तो किसी भी एक रो और कॉलम में मल्टीप्लाई करना रहता है. तो यहाँ ABC का हाउ वी आर मल्टीप्लाइंग, वी आर डिवाइडिंग दिस ABC into 3 term A, B and C. A we will multiplying ABC in C1, C2, C3. अगर आप चाहें तो R1, R2, R3 में भी कर सकते हैं, तो भी आप को सेम रिजल्ट मिलेगा. यहाँ मैंने C1, C2, C3 में मल्टीप्लाई करा है. C1 आई मल्टीप्लाई बाय A, C2 बाय B, C3 बाय C. जैसे ही मल्टीप्लाई करा वी आर गेटिंग
this expression. After multiplying, we will take common. Taking common A, B, C from R1, R2, R3. C1, C2, C3 में मल्टीप्लाई करा और R1, R2, R3 से कॉमन लिया. जैसे ही R1 से कॉमन लिया A, so what we are getting A square plus 1 B square C square. In the same way A square B square plus 1 C square, A square B square C square plus 1 in R3. Now as we have done multiplication, division and again we have taken common, this ABC is cancelled by ABC, so result remains same. पर हमने ये सारे एलिमेंट का लुक चेंज कर दिया. क्यों लुक चेंज कर दिया? क्योंकि हमें RHS में क्या चाहिए था, 1 plus A square plus B square plus C square. In board exam, once they have asked in this form determinant and we have to prove is equal to 1 plus A square plus B square plus C square. तो यहाँ किसी भी स्टेप से एक नया क्वेश्चन बन सकता है. तो हम लोगों ने अब यहाँ पे सारे एलिमेंट्स जिस फॉर्म में हमें चाहिए थे, इट हैज चेंज इनटू दैट. नाउ वेरी सिंपल, हम लोग इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो हम लोग कैसे करते हैं, वी विल अप्लाई द ऑपरेशन एंड वी विल ट्राई टू चेंज एनी वन रो और कॉलम इनटू वन. And as we take the element common from row or column, we want whatever is given in RHS. तो हमें RHS में A square plus B square plus C square plus 1 है. यहाँ C1 gives C1 plus C2 plus C3 हमने ऐड करा तो we are getting what term we want. So we are taking common A square B square plus C square plus 1 from C1. जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ 1 1 1 आ गया. जैसे ही हमें 1 1 1 दिखते हैं, इट बिकम सो ईजी. हमने पिछले लेक्चर में कॉन्सेप्ट देखा था कि जब भी किसी भी रो और कॉलम में सारे एलिमेंट 1 हो जाए तो दो 1 को 0 करने. हाउ वी विल चेंज इट, बाय R2 गिव्स R2 माइनस R1 एंड R3 गिव्स R3 माइनस R1. तो यहाँ R2 गिव्स R2 माइनस R1, 1 माइनस 1 0, B स्क्वायर इज कैंसिल बाय B स्क्वायर, 1 C स्क्वायर माइनस C स्क्वायर 0, 1 माइनस 1 0, B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर 0 1. Now we will expand through which, by first column, because in this maximum number of element are 0, so expanding along C1, no need to show it, is 0 0, so all element become 0 with 1. How we will get it, delete the row and column in which the element lies, so 1 into 1 minus 0, so we are getting this term, what is outside, A square plus B square plus C square plus 1, that is equal to RHS, and our question has completed. सेम कॉन्सेप्ट पे एग्जाम्पल 16 दे रखा है. वी हैव टू प्रूव दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस. सो वी आर मल्टीप्लाइंग, डिवाइडिंग और यू कैन से टेकिंग आउट ABC कॉमन फैक्टर फ्रॉम R1 R2 R3. आप चाहें तो ये वर्ड्स लिख सकते हैं या जो भी हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन करा था सेम पैटर्न में कर सकते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ABC. और क्वेश्चन के अंदर हम मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म को अंदर लेके गए थे, यहाँ डिवाइड वाली टर्म को लेके जा रहे हैं. क्यों डिवाइड वाली टर्म को लेके जा रहे हैं? क्योंकि हमें एलिमेंट किस फॉर्म में चाहिए, 1/A 1/B 1/C. तो यहाँ साइड में आप लिख सकते हैं टेकिंग आउट फैक्टर ABC कॉमन की जगह multiply and divide by ABC and then 1 by A in row R1 and 1 by B in row R2 and 1 by C in row R3. जैसे ही 1 by A R1 में करेंगे तो 1 into 1 by A plus 1 by A 1 by A. सेम वे 1 by B का R2 में मल्टीप्लाई करें, 1 by B plus 1 by B 1 by C 1 by C 1 by C plus 1. नाउ वाई वी हैव डन इन दिस वे, जो हमें RHS में एलिमेंट चाहिए इन दैट फॉर्म वी विल गेट इट. यहाँ मैंने एरो से शो कर रखा है. हम लोगों ने क्या करा है, 1 by A का मल्टीप्लाई करा है रो R1 में, 1 by B का करा है R2 में, 1 by C का करा है R3 में. आप दोनों का मीनिंग सेम है, टेकिंग आउट फैक्टर ABC कॉमन फ्रॉम R1 R2 R3 और ABC का मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड वाली टर्म को अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 R2 R3 रिस्पेक्टिवली. अप्लाइंग R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3. जैसे ये एलिमेंट RHS के फॉर्म में चेंज हो जाए, कंसेप्ट बिकम वेरी इजी. हमें सारे किसी भी रो के सारे एलिमेंट को सेम करना है एंड इन सच ए वे कि वी विल गेट इट द RHS टर्म फैक्टर. तो हम लोगों ने अप्लाई करा R1 गिव्स R1 प्लस R2 प्लस R3. R1 से कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस A प्लस B प्लस C. जैसे ही कॉमन लिया यहाँ 1 1 1 हो गए. जैसे किसी रो और कॉलम में सारे एलिमेंट 1 दिखते, विल चेंज 2 एलिमेंट इनटू 0. कैसे चेंज कर रहे हैं, C2 gives C2 minus C1, C3 gives C3 minus C1. दो एलिमेंट 0 हो गए. नाउ वी विल एक्सपांड बाय R1. जैसे ही एक्सपांड करा R1, वी आर गेटिंग व्हाट टर्म वी वांट इन RHS. वी वांट दिस. समटाइम दे आर आस्किंग टू प्रूव इक्वल टू दिस. दे कैन आल्सो आस्क इन दिस वे. हाउ यू दे कैन आस्क इट, ABC का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे. सो व्हाट विल गेट इट, ABC प्लस BC प्लस CA प्लस AB. So in any of the way they can ask it. This question also asked so many time in board exam.
Next question, question number 15th. Let A be a square matrix of order 3 by 3, then K is equal to. So already in first exercise I had explained the formula of this, as well as one more lecture I will upload, important question of 1 marks, in that you can see it. यहाँ पे हम लोगों ने K का मल्टीप्लाई कर रखा है मैट्रिक्स में, एंड इट इज़ इक्वल टू, जब भी किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करना रहता है, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल रहे तो फर्स्ट रो से भी कॉमन आएगा, सेकंड रो से भी कॉमन आएगा, थर्ड रो से भी कॉमन आएगा. तो K कितनी बार कॉमन रहा है? 3 टाइम्स. सो इट इज़ इक्वल टू K क्यूब into determinant A, or you can learn this formula. Determinant of K is equal to K raised to the power n into determinant A. What is n? N is the order of a matrix. Which of the following is correct? तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने डेफिनेशन समझाई थी डिटर्मिनेंट की. व्हाट इज डिटर्मिनेंट? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन? डिटर्मिनेंट इज ए नंबर एसोसिएटेड विद अ स्क्वायर मैट्रिक्स. Next question, miscellaneous exercise question 1. Prove that the determinant is independent of theta. According to the instruction of the question, we will apply the method. यहाँ कहीं पे भी उन्होंने प्रॉपर्टी वर्ड नहीं दे रखा है, तो आप चाहें तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट भी इसका एक्सपांशन कर सकते हैं. एंड इन द लास्ट वी टू प्रूव इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करके थीटा को एलिमिनेट करना है. तो हम लोग डायरेक्ट एक्सपांशन कर रहे हैं बाय फर्स्ट रो. सो व्हाट वी आर गेटिंग x, डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई, व्हाट डिटर्मिनेंट वी आर गेटिंग, देन अल्टरनेट साइन, पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा. सिंप्लीफाई करा, सिंप्लीफाई करने पे के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को हम लोगों ने साथ में रखा. वी आर राइटिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म टुगेदर, x साइन स्क्वायर थीटा, x cos square theta. X you will take common, sin square theta plus cos square theta, its value is 1, and we got it this value, minus x cube minus x plus 1 is equal to minus x cube, which is independent of theta. Our question is complete. इसी लेक्चर में अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले कंसेप्ट देखे थे. क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है. ये भी कई बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में, आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं. 2011, 13, 14 में पूछ चुके हैं. हम लोग LHS कंसीडर कर रहे हैं. NCERT बुक में सिर्फ दिस इक्वल टू दिस दे हैव गिवन इट. वंस दे आस्क इन दिस फॉर्म, कुछ न्यू स्टेप्स के फॉर्म में भी क्वेश्चन को का ट्विस्ट दे सकते हैं. सो हियर वंस दे आस्क इन दिस फॉर्म, वी आर कंसीडरिंग LHS. नाउ हियर we will prove a b c a square b square c square b c c a is equal to this b c c a b c a square b square c square. Now multiplying r1 by a, r2 by b and r3 by c and dividing outside by a b c, that is multiplying and dividing by a b c. तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा क्या करा है, डिवाइड करा है, तो हमें मल्टीप्लाई भी करना है. पर मल्टीप्लाई कैसे कर रहे हैं? r1 में a का, r2 में b का, r3 में c का. जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, हमें क्या मिलेगा? a b c. मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट कॉलम से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? ए बी सी कॉमन लिया, ए बी सी इज कैंसिल बाय ए बी सी. वट वी आर गेटिंग 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, दैट इज इक्वल टू RHS टर्म. आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट. बट हाउ दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, ये दोनों टर्म कैसे इक्वल हो सकती हैं? अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे कॉलम को इंटरचेंज कर रखा है. वी आर यूजिंग इफ एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज, देन द साइन ऑफ determinant is changed, that is the formula minus 1 raised to the power n into determinant. n is the number of time we are interchanging rows and column. तो ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं. यहाँ जैसे ही हम लोग कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, विल गेट इट दिस. और फिर उसके बाद हमने ABC का मल्टीप्लाई डिवाइड करा है. मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद कॉमन लिया है. कॉमन लेने के बाद वी आर गेटिंग RHS एंड आवर क्वेश्चन इज कंप्लीट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट. यहाँ पे भी उन्होंने बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी वर्ड नहीं दे रखा है, तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सपांशन करेंगे. हम लोगों ने डायरेक्ट एक्सपांशन करा है. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग एंड अप्लाइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, व्हाट फाइनल रिजल्ट वी आर गेटिंग 1. क्वेश्चन नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन हम लोग यू कैन सी इन माई नेक्स्ट लेक्चर, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अलॉन्ग विथ वन ऑफ द एग्जाम्पल आई विल कवर. क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ आल्सो सॉल्व द इक्वेशन. डिटर्मिनेंट का कंसेप्ट इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है. तो हम लोग यहाँ मैट्रिक्स में तो कंपेयर कर लेते थे, बट इट इज़ नॉट मैट्रिक्स, इट डिटर्मिनेंट, इट एज ए सम न्यूमेरिकल वैल्यू. सो वी विल सिंप्लीफाई. अगर आप चाहें तो डायरेक्ट एक्सपांशन कर सकते हैं और चाहें तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं. ऑपरेट C1 गिव C1 प्लस C2 प्लस C3. तो यहाँ पर हमें C1 के अंदर सारे एलिमेंट सेम मिल गए. 3x प्लस 1 हमने कॉमन लिया. जैसे किसी रो और कॉलम में एलिमेंट 1 1 मिलते हैं, वी विल चेंज टू एलिमेंट इनटू 0. वी विल एक्सपांड.
and then we are getting this term 3x plus a into a square is equal to 0. So the product of a square we will shift on that side, 0 divided by a square 0, 3x plus a is equal to 0, so x is equal to minus a by 3. अगर हम लोग डायरेक्ट एक्सपांड करते और यहाँ प्रॉपर्टी से करते तो दोनों में क्या अंतर आ रहा है. अगर आप डायरेक्ट एक्सपांड करते तो जो रिजल्ट मिलता मे बी इट इज़ नॉट इन ए फैक्टराइज फॉर्म, पर यहाँ प्रॉपर्टी से हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, डायरेक्ट फैक्टराइज फॉर्म में. तो चॉइस इज योर्स व्हाट वे यू वांट टू डू द क्वेश्चन. I hope all of you understand the concept. As more and more practice you will do it of this concept, then only you will be perfect and then only it will be easy for you. Thank you.